एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों और अब खबरें विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश से उभर रही झूठी और भारत विरोधी नैरेटिव को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बांग्लादेश की इंटरिम सरकार की जिम्मेदारी है। एमईए ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, जिसमें एक हिंदू युवक की हत्या भी शामिल है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। I've seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. Akhilesh, your question regarding minorities, we are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Maimen Singh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में बनकर उभर रहा है। रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि 24,000 करोड़ के रक्षा निर्यात 100 से अधिक देशों को किए गए। अब 65% उपकरण स्वदेशी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एडवांस ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का प्रदर्शन हुआ। रक्षा बजट में 20 से 25% तक वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें एआई, मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नौसेना के विस्तार पर जोर होगा। भारतीय सेना ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव किया है। अब सैनिक और अधिकारी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और मॉनिटरिंग के लिए कर सकेंगे। पोस्ट करना, लाइक या कमेंट करना अभी भी सख्त मना है। इसका उद्देश्य जानकारी और जागरूकता बढ़ाना, साथ ही ऑपरेशनल डिसिप्लिन बनाए रखना है।
नाइजीरिया ने अपने नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों पर प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की पुष्टि की है। ये ऑपरेशन अमेरिका सहित कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सुरक्षा सहयोग के तहत किया गया। नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले आतंक और हिंसक एक्सट्रीमिज्म के निपटने के लिए right on the greenhouses. You gotta come on now. Come on, put that missile. Roger, missile's away. Good shot. Venture. Good hit. Okay, we should clear and go back. Target's destroyed. And breaking left, not to overflying. Impact. Roger. Breaking left. Viper 5-1, Roger. And if you could relay to Dragon 3-3, thanks for all his help. Enjoyed working with him. 526, both of you, thanks for your help today. Roger. राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज समर्थन को बैकिंग नहीं दी। Well, it's very hard to find an actual principle underlying Trump's foreign policy other than personal self-interest. For example, the United States has been trying to cultivate a good relationship with India as a counterweight to China. We've been doing this for the last 20, 30 years. Donald Trump really threw that away because Prime Minister Modi, Indian Prime Minister Modi, wouldn't support his bid for a Nobel Peace Prize. And so he's basically subordinated American national interests to his personal vanity. And I think that anyone hoping to see a consistent thread in any of his actions is going to have a lot of trouble doing that. अहमदाबाद में मोहम्मद अहराज हुसैन पर अपनी कजिन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसे ऊपर से आदेश मिल रहे थे। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। एक तरफी प्रेमમાં છેડતી કરી અને પૂછતા એવો જવાબ આપ્યો કે અલ્લાહે કહ્યું એટલે કર્યું। किसकी आवाज है ये ऊपर वाले की आवाज, ऊपर वाला मतलब यानी निराकार की, अल्लाह की। અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં અહેરાજ હુસેન નામના એક વ્યક્તિ પર તેના પિતરાઈ ભાઈની પત્ની સાથે છેડતી કરવાનો ગંભીર આરોપ છે। આરોપ મુજબ તેને મહિલાનો હાથ ખેંચીને અશ્લીલ હરકત કરી અને આ મામલે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે। પોલીસ સ્ટેશનમાં તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અહેરાજ મહિલાની સાથે એક તરફી પ્રેમ રાખતો હતો અને આ પહેલીવાર નથી। વર્ષ 2024માં પણ આવી જ હરકત બાદ મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન અહેરાજે દાવો કર્યો હતો કે વારંવાર અલ્લાહનો અવાજ સંભળાતો હતો, જેના આધારે તેને આવું કર્યું। હાલ આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં છે અને સમગ્ર મામલાની કાયદેસર તપાસ ચાલી રહી છે। पूर्व एमपी और अभिनेत्री जयप्रदा ने बांग्लादेश में दीपू चरण दास की लिंचिंग पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ मॉब लिंचिंग बताया और सेक्युलरिज्म के नाम पर खामोशी पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की। आज मैं बहुत दुखी हूं। आज मेरा कलेजा फट रहा है ये सोचकर कि एक इंसान के साथ इतनी दरिंदगी कैसे हो सकती है। बांग्लादेश में टिप्पू चंद्र दास नाम के एक मासूम हिंदू भाई को भीड़ ने मिलकर मार डाला। सिर्फ मारा ही नहीं, उसे पेड़ पर बांधकर और उसे आग लगा दिया। क्या यही वो नया बांग्लादेश?
ये मामूली हिंसा नहीं है, ये सरासर मॉब लिंचिंग है, सीधा सनातन धर्म पर और हिंदुत्व पर प्रहार है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों पर इज्जत पर खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? हम लोग सेक्युलरिज्म के नाम से अपने आंखें बंद करके चुप हैं। हम न्याय मांगते हैं, ये हिंसा बंद करना चाहिए। हम सब आवाज उठाना चाहिए। उन हिंदू भाई लोगों को बांग्लादेश में जो हिंसा कर रहे हैं, उनको परेशानी कर रहे हैं, उन सबको हम मदद करना चाहिए। हम सब मिलकर आओ, आप सब आवाज उठाओ, हम सब मिलकर उनको न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। नमस्ते। मुंबई के सेंट थॉमस कैथेड्रल में क्रिसमस कॉरल सिंगिंग की शुरुआत के दौरान राष्ट्रीय गान बजाया गया। इस मौके पर एकता और सद्भाव का संदेश दिया गया। वरिष्ठ इस्लामी विद्वान और पाकिस्तानी नेता फजल उर रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान काबुल पर हमलों को जस्टिफाई करता है तो भारत भी बहावलपुर और मुरिदके पर हमलों को जस्टिफाई करेगा। कि पाकिस्तान को 78 साल से एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक मुसलसल प्रो इंडियन अफगानिस्तान मौजूद है, प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान मौजूद नहीं है, सिवाय अमारत इस्लामिया के कि यही एक तबका है कि जिसको प्रो पाकिस्तान कहा जाता है। अगर वहां पर हुकूमत होगी तो अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान तस्वूर किया जाएगा। लेकिन एक मसले पर इख्तिलाफ हो गया, नाराजगी आ गई। अब नाराजगी उसके बाद आप वहां स्ट्राइक करें। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे। नंबर एक। दूसरा ये कि ईरान के बारे में आपने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके मराकज़ ईरान में है, और आपने ईरान में जाकर स्ट्राइक किया, और उसके बदले में अगर ईरान ने आपके इलाके में स्ट्राइक किया और आपने कहा कि वहां पर हमारे दुश्मनों के मराकज़ हैं। अब बात यह है कि मौक़िफ़ एक अफगानिस्तान के बारे में भी और ईरान के बारे में भी, लेकिन रवैये में फ़र्क क्यों है? इसलिए कि ईरान की हुकूमत एस्टेब्लिश्ड है और अभी दुनिया उसको उखाड़ने की हिम्मत नहीं कर रही, और अफगानिस्तान की हुकूमत आपको गैर मुस्तहकम नज़र आ रही है।
लिहाजा उधर रवैया और उधर रवैया और। तो ये जो दुनिया में रवैये आप अपना रहे हैं उस पर सवालात उठ रहे हैं और हमें उस हवाले से एक मुतवाज़िन राय देनी हो। अफगानिस्तान से पहले इन्होंने जो 18 साल से कम उम्र की बात की है, अब उलमाए किराम हैं, इतनी मज़हब का खेज कानून मैंने दुनिया में नहीं देखा। कहते हैं कि अगर 18 साल से पहले शादी हुई तो इसको जिनसी ज़ियादती से ताबीर किया जाएगा और इसको ज़िना बिल जबर कहा जाएगा। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो जायज़ होगा और कफालत वालिद पे होगी और जेल से कफालत करेगा। ये मज़हब का खेज किस्म के कानून, कोई खुदा का खौफ कर रहा है। अफगानिस्तान बुलूगत के लिए शरई कवायद ज़वाबित मौजूद है और इल्मी लिहाज से क्या उसके लिए उम्र की कोई क़ैद है कि जहाँ पाकिस्तान में उसको। और फिर इसके अगराज़ व मक़ासिद जो कानून के पीछे मसवदे के पीछे लिखे हुए हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की पैरवी में हम कर रहे हैं। भाई तुमने कुरान और सुन्नत का हल्फ उठाया है, तुमने इस आइन का हल्फ उठाया हुआ है, तुमने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ नहीं उठाया। अपने हल्फ पे जाओ, तुम अपने हल्फ से रुगर्दानी करके उसको तोड़कर बैनुल अक़वामी वो कवानीन जो हमारा आइन उसकी इजाज़त नहीं देता उसकी पैरवी कर रहे हो। क्यों? जहाँ ढाका में एक रेडिकल व्यक्ति ने नारे लगाते हुए ऐतिहासिक मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की। ये जगह बांग्लादेश की लैंग्वेज मूवमेंट, मास अपराइजिंग और लिबरेशन वॉर के प्रतीक रही है। इस घटना के बाद तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत जल्द ही अपनी पहली व्यापक एंटी टेरर पॉलिसी पेश करने जा रहा है। इसका फोकस डिजिटल रेडिकलाइजेशन, खुली सीमाओं के दुरुपयोग, आधार स्पूफिंग और विदेशी फंडिंग से चल रहे कन्वर्जन नेटवर्क्स पर होगा। is set to unveil its first MEA ने दोहराया है कि भारत सभी भागे हुए अपराधियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ से भागे हुए लोग हैं, हमारे कानून के दायरे से भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे। इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध। फिरोजपुर के श्रवण सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों को लस्सी और दूध पहुंचाया, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान की। इस नन्हे वीर को सलाम। उम्र 10 साल, फिरोजपुर, पंजाब। आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया।
वंश तैयार महाराष्ट्र के पुणे की कोंडवा इलाके में पुलिस ने अवैध शराब की धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की गई और कम से कम 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाँव पट्टी में चंदा भी मैं चंदा कौन के पैर में पड़े ना जो होंगे काम ना करके खत्म होगा साहब। मेरे बच्चे ने रात को 3 बजे जाते हैं काम करने को। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সবার দায়িত্ব দেশের সুনাম রক্ষা করে দেশকে পৃথিবীতে একজন বিশ্বনগরী দেশ হিসেবে প্রকাশ করা, সেটা মনে হয় যারা বাংলাদেশ আসলে সোনার বাংলাদেশ এবং ঐক্যের যে ঘটনা ঘটেছে ধন্যবাদ। আমরা চন্দ্র যাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের কোনো কিছু হলে সরকার মহিলা অবমাননা করে, আর সরকার মহিলা নিজের যে কর্মকর্তা তাদের জীবন দেয় না, তারা অবমাননা করে কখন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের এই মিথ্যাভাবে ধর্ম অবমাননা নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, কখনো ফিরিয়ে মারা হয়, কখনো পুড়িয়ে মারা হয়। সকালের বন্ধুরা, আপনারা জানেন নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা আজকে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা এখানে মানববন্ধন শুরু করব। আজকের এই প্রতিরক্ষা সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ জাতীয় মৃত্যু মহাজোটের সম্মানিত সভাপতি অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায়। অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায় তারাকে আজকে মানববন্ধন শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বাংলাদেশে আজকের এখানে মানববন্ধন শুরু হচ্ছে এবং তার পরিবর্তে আমি মানববন্ধন শুরু করার জন্য আমাদের যারা পরিচালনা আছে তাদেরকে আজকের এই মানববন্ধনে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোটের যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত তালুকদার দাদাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে অনেক কষ্ট নিয়ে টেস্ট করে দাঁড়িয়েছি। 1971 সালেও এরকম অত্যাচার হয় নাই। বিগত সরকারের আমলে অনেক অত্যাচার হয়েছে, তার থেকে বেশি অত্যাচার पाकिस्तान में एक बार फिर सेना की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि सुहेल अफरीदी को पंजाब विधानसभा से जबरन बाहर निकाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान धक्का मुक्की, मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया। घटना के बाद पश्तून समुदाय से जुड़े नेताओं और संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना का रवैया पश्तूनों के प्रति लगातार भेदभावपूर्ण और दमनकारी रहा है। इस मामले ने पाकिस्तान में मानवाधिकार और संघीय ढांचे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्नाव ये देखो
रेप कांड की पीड़िता, उनकी मां और उनके अधिवक्ता महमूद प्राचा सीबीआई कार्यालय पहुंचे। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। सीबीआई का कहना है कि दोषी की सजा निलंबित किया जाना न्याय के हित में नहीं है और इससे पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आराम से कर लेना, हम लोगों ने कर लिया है। हम 8 बजे से ना उसके घर के बाहर ही। चलिए उधर, चलिए उधर, जाओ 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 जाओ, उधर उधर आराम से बस दादा थोड़ा पीछे आ जाइए। आराम से हाँ आराम से दे देगी वो, दे देगी वहाँ पे जाओ, आराम से निपटा दो। आकाश आगे हाँ जाने दो जाने दो जाने दो। इनके भी जो काम करते साइड का हम नहीं जाएंगे अंदर। ओडिशा में कांग्रेस की राजनीतिक उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दौरे को लेकर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका ओडिशा दौरा पूरी तरह आधिकारिक और धार्मिक है, न कि किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, मैं ओडिशा भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आया हूं और साथ ही हमारे बूथ स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, जो हमारे चुनावी अभियान की रीढ़ हैं। मैं 2 से 3 दिनों तक उड़ीसा में रहूंगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि चुनाव आयोग ने दोहराया है कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह निष्पक्ष और संवैधानिक दायरे में हैं। जय जगन्नाथ। समस्त उड़ीसा वासियों को मोर नमस्कार। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ, द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। मेघालय में राजनीतिक और सुरक्षा माहौल उस समय और गर्मा गया जब वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसियाव मॉइट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हिन्यू थ्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल की धमकियों को खुली चुनौती दी। आर्डेंट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनके साथ कुछ भी होता है, यहां तक कि हत्या भी, और उससे मेघालय की जनता का भला होता है तथा शासन व्यवस्था बेहतर होती है, तो वे इसके लिए तैयार हैं। आर्डेंट बसियाव मॉइट ने जोर देकर कहा कि खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर वीपीपी का नियंत्रण किसी उग्रवादी संगठन की वजह से नहीं, बल्कि जनता के जनादेश से मिला है। उन्होंने दोहराया कि पार्टी का लक्ष्य शासन व्यवस्था में सुधार और मजबूती लाना है, खासकर पारंपरिक संस्थाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि हीमा सोहरा की पारंपरिक संस्था में कुछ खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है और इन मुद्दों को उठाने को गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का रुख उकसावे के लिए नहीं, बल्कि जनहित और सुधार के उद्देश्य से है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब सोमवार को एचएनएलसी ने आर्डेंट बसियाव मॉइट को ब्लेई खिंदियू की तरह व्यवहार करने से आगाह किया।
प्रतिबंधित संगठन ने KHADC के मामलों में कथित हस्तक्षेप का विरोध करने और हीमा सोहरा के निर्वाचित सीएम को सनद जारी करने में हो रही देरी को लेकर उनकी आलोचना की। ये घटनाक्रम खासी हिल्स में लोकतांत्रिक संस्थाओं और गैर संवैधानिक ताकतों के बीच जारी तनाव को उजागर करता है, जहां स्वदेशी अधिकारों, पारंपरिक सत्ता और सुशासन को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। Take a look at some more news. Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Apex News, India, Northeast.